Hello, good morning to all of you. My voice is audible to all of you. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning, all of you. So actually today I am Good morning. taking. Good morning. Actually today I am taking your basic electrical engineering that subject. Okay. Actually Pankaj is busy right now, so that's why I am taking your class. So I think you have just studied na transformer. Okay. The topic is going on, that is transformer na. Ayushraj. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So I think in transformer, all of you know about the equivalent circuit. Simple, these things are clear, na? Equivalent circuit, losses, is clear. How to draw the equivalent circuit, all these topics are clear, na? So okay, actually today very important class of transformer. Today I am taking a two period. That is first period and second period. So again, the very important topic today I will discuss in the transformer. Okay, some students are joining now. Actually, I am taking your first class. I think you know about me. Actually, I have taken your Yes, induction program that time. Okay, so all of you familiar with me, but I have not taken your any classes. I am just taking the fourth semester, sixth semester, final year classes. So today, okay, a very important transformer. I think all of you know the very basics of all the about the transformer. So one very important topic, you know, the transformer performance. How to analyze the transformer performance? Very important topic. Means the voltage regulation of a transformer. The today topic is voltage regulation of a transformer. Topic is screen is visible. Voltage regulation. yes, sir. Voltage regulation of a transformer. Voltage regulation of a transformer. Okay. So all of you know about transformer. Basic purpose of transformer. Transformer in the generation station also, distribution system also. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स यू नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हम लोग का जैसे हम लोग का गांव में तुम्हारे घर में जो तुम्हारे घर में पावर सप्लाई आ रहा है, ठीक है. सो फ्रॉम वेयर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का बात हो रही है, ठीक है. तो वोल्टेज रेगुलेशंस, व्हेन जस्ट टू टॉक अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन, देन वी जस्ट टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. जहां पर पावर जनरेट हो रहा है हम वहां का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. जहां से हम लोग का वोल्टेज का स्टेप डाउन स्टेप अप करके आ रहा है वहां का बात मैं नहीं कर रहा हूं. मैं सिंपली वोल्टेज रेगुलेशन जो बात हो रही है, दैट्स डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग के जो घर में हम लोग का लोकेलिटी में, विलेज में, टाउन में जो भी हम लोग का सप्लाई आ रही है, जो सप्लाई आ रही है, तो सपोज उस ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस एनालिसिस जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन होती है. सो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग को वोल्टेज, जैसे आप घर में सपोज यू आर यूजिंग सम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, एसी और many things, okay. But suppose in your home when you just supply voltage, it not constant, there is some fluctuation in the voltage, then you know that that's create the detrimental effect in the appliances. This is the very detrimental effect, means harmful effects on the equipments. यदि वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस होना शुरू कर देगा तो क्या होगा, हम लोग का घर में जो भी इक्विपमेंट होगा उसमें क्या होगा, डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा उसमें, ठीक ना. तो वोल्टेज रेगुलेशन प्लस माइनस 5% हम लोग का वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, प्लस माइनस 5% तक हम लोग मान सकते हैं कि ठीक है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं. बट यदि ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है. तो एक्चुअल में ट्रांसफार्मर के बारे में जो बेसिक है वो सबको पता होगा. देयर इज द प्राइमरी साइड एंड द सेकेंडरी साइड, ठीक है. प्राइमरी साइड एंड द सेकेंडरी साइड.
मतलब सेकेंडरी साइड को बेसिकली हम लोग लोड जो कनेक्ट करते हैं, लोड साइड, ठीक है ना, लोड साइड। जस्ट वेट, सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। सो ओके, लिसन ऑल ऑफ यू, जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो, जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो, तुरंत ट्रांसफार्मर, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसफार्मर की क्लासेस चल रही थी पंकज सर की, उसको मैं आज पढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सो ओके, मैंने अभी डिस्कस कर दिया हूँ, जो अभी ज्वाइन किया हो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन इज सिंपली व्हाट, दिस इज द फाइंड आउट द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ द ट्रांसफार्मर। मीन्स वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज हम लोग का ट्रांसफार्मर में एक्चुअली क्या करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज करते हैं, सब तो वोल्टेज का ही सप्लाई हम लोग कर रहे हैं ट्रांसफार्मर से, है ना। तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब वही है कि ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस। Voltage regulation is simple word, we can say that this is the important measure of transformer performance. Okay, so वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस कम से कम हो, वो हम लोग का कोशिश रहेगा ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए। सो ट्रांसफार्मर का यदि हम लोग बेसिक जानते हैं तो सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर का जो सिंपल, यदि हम लोग ये ट्रांसफार्मर के बारे में यदि हम सिंपल बात बोलेंगे तो सबको पता है कि ट्रांसफार्मर का जो बेसिक है वो देख सकते हैं कि दिस वन द सपोज प्राइमरी साइड, ओके, नाउ this one is the secondary side, okay, so this is the primary side and now this is the secondary, ठीक है। इस सब के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक सबको पता होगा इसे प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, ठीक है। हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो बेसिकली जो हम लोग का जो वोल्टेज रेगुलेशंस का यदि बात करेंगे, नो लोड कंडीशंस के लिए नहीं बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जब बात करें वोल्टेज रेगुलेशन, बेसिकली लोडिंग कंडीशंस, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर का यदि हम लोग बोलते हैं ना कि रेटेड वोल्टेज, सो व्हाट डू यू मीन बाय, जैसे ट्रांसफार्मर का कभी देखोगे तो ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, नेम प्लेट रहता है। ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, नेम प्लेट रहता है। तो नेम प्लेट में सारा रेटिंग लिखा रहता है। तो जो ट्रांसफार्मर में जो रेटिंग रहता है लिखा हुआ, क्या उस रेटिंग के बारे में समझते हो? वो रेटेड हम लोग बोलते हैं, रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट सब कुछ बोलते हैं। तो वो एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर का जो रेटेड बात करते हैं ना, वो नो लोड के लिए, वो किसके लिए है, नो लोड के लिए। ट्रांसफार्मर इसमें क्या है, नो लोड कंडीशंस के लिए। जब भी हम लोग सेकेंडरी को यहाँ पर कुछ लोड कनेक्ट कर देंगे, तब यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया, सेकेंडरी यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन इस लोड पे डिपेंड करेगा। The regulations of the transformer is totally depends upon the which type of load now you are connected here. यहाँ पर हम लोग किस टाइप का लोड को कनेक्टेड किए हैं, उस चीज पे यहाँ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लोड का जो हम लोग बात करेंगे तो डिफरेंट लोड होता है, पता होगा सबको। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट द डिफरेंट लोड्स, मीन्स डिफरेंट पावर फैक्टर्स में लोग, लैगिंग लोड, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग लोड, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर्स। क्या ये सब के बारे में हमको लगता है कि सब कुछ तुम लोग पढ़े होंगे क्लास में पहले से, क्योंकि लैगिंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है, यूनिटी क्या होता है ना। तो जो रेगुलेशन होगा ट्रांसफार्मर का, वो इस तीनों कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि विच टाइप ऑफ लोड नाउ यू आर कनेक्टेड। लैगिंग लोड, whether this is lagging load, whether this is leading load, and whether this is unity load, means lagging power factor, unity power factor and leading power factor। उसके अकॉर्डिंग में हम लोगों को जो इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्टेज रेगुलेशंस का कैलकुलेशंस करने के लिए। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू फैमिलियर अबाउट द वोल्टेज नॉट इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबको पता है। ये दिव्यांशु, आवाज आ रही है दिव्यांशु? यस सर। तो ये सब पता है, इक्विवेलेंट सर्किट, प्राइमरी रेफर करते हैं, सेकेंडरी को रेफर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये सब पता है सबको? यस सर। क्लियर है सबको ना? So how to draw the equivalent circuit, phasor diagrams for the leading, lagging, unity power factor, ये सब क्लियर है ना सबको? सबको क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो आई होप दैट तुम लोग को पता होगा ये सब चीज।
तो जो है कि हम आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन जो हम पढ़ा रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का यदि हम लोग बात करेंगे कि बेसिक डेफिनेशंस क्या है, तो वो डेफिनेशंस के बारे में जो है कि हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन यदि हम लोग लिखते हैं सिंपल, देखो हम लोग के पास क्या है, यहाँ पर एक नो लोड है, एक तुम्हारा लोड है, लोड साइड, एक नो लोड साइड, ठीक ना। सो यहाँ पर जो भी हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। पहले डेफिनेशन तुम लोग को मैं बता देता हूँ कि जो डेफिनेशन है कि सिंपली यदि हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करना चाहेंगे तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज in magnitude of the secondary terminal voltage expressed as a percentage so percentage or per unit, percentage of the secondary rated voltage, percentage of the secondary rated voltage when load at a given power factor is reduced to 0 with primary applied voltage held constant. So सिंपली यदि हम लोग वोल्टेज रेगुलेशंस का बात करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, दिस स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू, विजिबल ना, E2 minus V2, और नाउ दिस इज सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज, और सिंपली यदि इसको हम लोग पर यूनिट में बात करते हैं कि पर यूनिट में। So E2, what is E2 here? What is E2 here? E2 is what? Secondary rated voltage at no load. Secondary rated voltage at no load. Okay. Or V2, what is V2? Secondary rated voltage at any load. At any load. बात को समझना है। ओके, सो ये वोल्टेज, अच्छा अभी सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस एनालिसिस, रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का जितना अच्छा रहेगा परसेंटेज रेगुलेशन, वो ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का रेगुलेशंस को हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही रहता है, जो हम लोग ट्रांसफार्मर का रेगुलेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो लेकिन ट्रांसफार्मर का रेगुलेशंस एक्चुअली लोड पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी साइड में which type of load you are connected is depends upon this secondary side, see a load, इसका जो हम लोग लोड कनेक्टेड किए हैं, किस टाइप का लोड का हम लोग कनेक्शन किए, वेदर दिस इज लीडिंग, लैगिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर लोड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन E2 माइनस V2 और सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज, जो ये सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज जो है, ये नीचे वाला चीज, ये बेसिकली जो हम लोग परसेंटेज, सिंपली यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन VR, ओके। सो E2 माइनस V2 व्हेन, जब हम लोग का रेटेड वोल्टेज बात करेंगे, सिंपली E2 होगा into 100, E2 माइनस V2 by E2 into 100,
ये हम लोग का बेसिक जो फॉर्मूला है जो हम लोग आगे इसका यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं तुम्हें जो है कि नोट्स भी भेज दूंगा इसका, ठीक है। ओके, तो ये बताओ कि ये जो टॉपिक वोल्टेज रेगुलेशन जो हम बात कर रहे हैं, ये अभी मतलब कुछ आइडिया लग रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशंस का मतलब क्या है? बोलो बोलो, सब कोई क्लियर हो रहा है वोल्टेज रेगुलेशन? सब कोई तुम लोग पढ़ाई करते हो ना ठीक से? प्रभात कुमार, मिस्टर प्रभात, प्रभात कुमार, आवाज आ रही है प्रभात कुमार? यस सर। हम्म, यस सर। तो क्या है वोल्टेज रेगुलेशन? समझ में आ रहा है वोल्टेज रेगुलेशन है क्या, किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं? यहाँ पर सर घर के बगल में नमाज हो रहा है सर, इसीलिए क्या हुआ? ज्वाइन नहीं कर पाए हैं सर। तुम अभी ज्वाइन किया इसीलिए तुमसे हम पूछ नमाज रहे हो रहा हैं। है सर, मतलब कि सुनो, ठीक है, म्यूट करो। टाइम पे ज्वाइन करेगा तब ना पढ़ोगे। मेरी वोल्टेज लोड है सर। वोल्टेज रेगुलेशन, देखो तुम लोग अभी जो है बाबू फर्स्ट ईयर में हो, तुम लोग अच्छा से थोड़ा पढ़ाई करो, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। मैं जो है कि सब वीडियो यूट्यूब में भी है, और जो है कि इस वीडियो को भी यूट्यूब में भी डाल दूंगा, वहां से फिर से देख लेना, ठीक है। और उसके बाद तुम लोग का किसी का एक नंबर अभी इसके अटेंडेंस का, इसकी सीआर कौन है? कोई होगा ना इसमें, कोई भी सीआर या कुछ होगा ना? कौन है? कोई होगा ना रिप्रेजेंटेटिव, कोई है क्लास का? सर गौरव कौन है? अभिषेक भारती सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल का। अभिषेक भारती, ठीक है। तो अभिषेक भारती अभी है, तो इसके अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी भेजोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई अभी बाद में बात करेंगे। अभिषेक भारती को ही मैं सारा सारा चीज भेज दूंगा, ठीक है। ओके, तो नाउ कम टू, हाँ चलो बोलो। सर हम पूछे थे वो फॉर्मूला कैसे आया था व्हाट फॉर्मूला? जो आप लिखा है E2 माइनस V2 अपॉन E2 यही तो वो रेगुलेशन वाला। ये तो रेगुलेशंस परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं? ये जो रेगुलेशन, नो, हम लोग के पास दो चीज है। हम लोग का ट्रांसफार्मर, वेदर तुम्हारा कोई लोड नहीं है, और ट्रांसफार्मर क्या होगा, एट एनी लोड होगा। बात समझ में आ रहा है? ट्रांसफार्मर में हम लोग का जब एक क्या है, एक साइड हम लोग का जब कोई लोड नहीं है, तो हम लोग का जो वोल्टेज E2 माने हैं, ठीक है। अब कोई भी लोड कनेक्शन यदि हम लोग कर देते हैं तो उसको हम लोग V2 माने। बात समझ में आ रहा है? तो जो डिफरेंस है, जो हम लोग का जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। E2 माइनस V2 और बाई जाए डिवाइडेड बाई E2। तो ये हम लोग का क्या है, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। जो हम लोग का कोई भी लोड नहीं है ट्रांसफार्मर में, तब हम लोग का क्या वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज, जिसको कहेंगे रेटेड वोल्टेज, जो ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में लिखा रहता है रेटेड वोल्टेज, जब कोई लोड नहीं है। लेकिन फिर जब ट्रांसफार्मर में हम लोग कोई ना कोई लोड लगा देते हैं, वह लोड कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लोड है, कुछ भी लोड, तो उस समय उसका वोल्टेज जो हम लोग V2 माने हैं, ठीक है। तो उस वोल्टेज दोनों का डिफरेंस, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंड आउट द रेगुलेशंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको निकालने का ये प्रोसेस है। अब लेकिन बात आती है कि वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग कैसे फाउंड आउट करेंगे। हम लोगों ने तो फॉर्मूला समझ लिया है ना। अब तुम्हारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, देन हाउ टू फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन। देखो ध्यान से, वोल्टेज रेगुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन बोल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ voltage regulation of transformer, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो मैंने अभी बताया कि ट्रांसफार्मर का जो लोड
लोड का मतलब क्या समझते हैं? लोड मतलब लोड बेसिकली करंट डिपेंड करता है ना। तो यदि हम लोग का करंट मतलब लेगिंग लोड है, लीडिंग है, यूनिटी पावर फैक्टर है, तो जो करंट का जो हम लोग सेकेंडरी बेसिकली सेकेंडरी साइड का बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज इसमें हम लोग रेगुलेशन निकालने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हम लोग को पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड। पता है किसी को? नहीं पता होगा। अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पता होगा लेकिन अभी याद नहीं हो रहा ना, कि हम लोग जो इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू व्हाट सेकेंडरी साइड, प्राइमरी को रेफर कर रहे हैं किधर? सेकेंडरी साइड में, वो आता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये रेगुलेशन किस चीज के लिए निकाल रहे हैं? ट्रांसफार्मर के लिए। तो ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन कब निकलेगा? जब ट्रांसफार्मर में लोड रहेगा, लोडिंग कंडीशन समझ में आना चाहिए। ट्रांसफार्मर ओपन है तो थोड़े पता चलेगा रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर का लोड कनेक्शन है तभी पता चलेगा, उसका रेगुलेशन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस समय सेकेंडरी साइड में जो लोड कनेक्टेड है, प्राइमरी को रेफर करेंगे सेकेंडरी साइड में, तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द सेकेंडरी साइड। आता है किसी को? नहीं आता? देखो मैं बता रहा हूँ, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेफर कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है? ऐसे सबका कॉपी में होगा, ये तो पक्का बात है, कॉपी में सबका होगा, ठीक है, किसी किसी को याद भी होगा ही। तो बहुत कोई अभी ज्वाइन कर रहे हैं। RE2 equivalent resistance of secondary refer to primary side। इस पूरा इंपिडेंस को मान लेते हैं ZE2। ये लोड है, कुछ भी हो सकता है लोड, अब लोड साइड वोल्टेज है V2। दिस इज ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट जो डिफरेंट कंडीशन होगा, मैं वो अभी इक्विवेलेंट सर्किट पे नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। तो तुम लोग जो है कि इक्विवेलेंट सर्किट का सर का क्लास तो होगा ही, तो वहां से भी तुम इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसको देख लेना एक बार, ठीक ना, यदि भूल गए हो तो। ये है हमारा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट का डिफरेंट कंडीशन में ड्रॉ किए हो ना तुम लोग सब कोई? इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू व्हाट? सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड, ठीक है। अच्छा, हम लोग जब ये RE2, अच्छा ये सब भी तुम लोग को पता होना चाहिए। इसे हम लोग लिखना चाहेंगे RE2 का वैल्यू, RE2 का वैल्यू, तो ये क्या होता है, बता सकते हो? RE2 का वैल्यू क्या होता है? अपना R2 सेकेंडरी और प्लस जो प्राइमरी रेफर्ड हुआ है R1 प्लस, यही ना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी साइड। पढ़े हो जी तुम लोग ये सब? XE2 इज इक्वल टू X2 प्लस X1 बाय K स्क्वायर। पढ़े हो ना सब? ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग पढ़े होगे सब, ठीक है। तो ये सब जो है कि आना चाहिए, हमको लगता है सबको आना चाहिए, ये वाला जो बता रहा हमें अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द सेकेंडरी साइड, ठीक है। देखो जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, मैं तो ज्वाइन करा दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जो है कि टाइम पे आना होगा। टाइम पे नहीं आओगे तो फिर मैं ज्वाइन जो है कि ठीक है कर दिया हूँ, अभी नेक्स्ट क्लास में सबको एक ही बार में अभी तुरंत ज्वाइन करना होगा। सो कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। देखो कुछ स्टेप्स है वोल्टेज रेगुलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रांसफार्मर का कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहला चीज, जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है V2, उसको हमेशा रिफरेंस लेंगे। फेजर डायग्राम तो ड्रॉ करते हो ना, तो उस समय तुम लोग नहीं लेते हो ना हमेशा उसको रिफरेंस स्टेप्स। जैसे V2 को V2 टेकन एज रेफरेंस, टेकन एज रेफरेंस, ओके। सो V2 को यदि रहेंगे तो इसको कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं ना, V2 और कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, डिफरेंस है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 प्लस J0। बोलो जी, लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक सबको? अब जो करंट है, हाँ, अब जो करंट का बात यदि हम लोग कर लेंगे, करंट का बात है,
तो करंट के केस में तो लोड पे डिपेंड करेगा करंट, कि वेदर दिस इज लैगिंग, दिस इज लीडिंग, दिस इज यूनिटी। देखो भाई एकदम बेसिक बेसिक, देखो मैं तो क्लास नहीं लिया हूँ तुम लोग का, इसीलिए मैं थोड़ा अननोन फील कर रहा हूँ कि मतलब सर तुम लोग को पिछले क्या पढ़ाई नहीं, यदि मैं क्लास लेता तो हमको पता रहता कि हम ये पढ़ाई, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली आई एम फीलिंग अननोन कि तुम लोग को पता है कि नहीं है, पता है ना। लेकिन मैं जो भी तुम लोग को जरूरत पड़ रहा है मैं यहाँ पर क्लियर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। सो ओके, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द लीडिंग लैगिंग कॉन्सेप्ट। So suppose that now for lagging power factor, for lagging power factor. So for lagging power factor, I think all of you know about I2 is like written like that, I2 minus phi2। पता है ये सब लिखते हो कैसे, पता है ना? इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तुम बता सकते हो? No, sir. लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग मतलब क्या समझते हैं? करंट ऑलवेज लैग बिहाइंड द वोल्टेज। लैगिंग का मतलब क्या समझ रहे हो? वोल्टेज से करंट जो रहेगा पीछे चलेगा। और लीडिंग मतलब करंट क्या होगा, हमेशा आगे चलेगा, ठीक है। करंट लीड करेगा सर, हाँ करंट लीड करेगा। और यूनिटी का मतलब क्या होता है कि करंट वोल्टेज सेम फेज में चल रहा है, मतलब जीरो, देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बाबू तुम लोग दे विल बी सेम सर, सम सेम फेज, ये सब तुम लोग को बेसिक पता होना चाहिए, प्लस 2 में भी है सब, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए कि लैगिंग का मतलब क्या होता है, लीडिंग का हमेशा करंट से फॉर्म में हम लोग देखते हैं। करंट यदि वोल्टेज से आगे चल रहा है लीडिंग हो रहा है ना। तो जब पीछे चल रहा है तो माइनस phi2। अब इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, I2 cos phi2 माइनस जे I2, एक मिनट, जे यहाँ पर I2 होगा साइन phi2, ठीक है। सिमिलरली बी नंबर क्या है, लीडिंग मान लेते हैं, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। ओके बाबू एकदम समझोगे अच्छे से, ठीक है। सो लीडिंग पावर फैक्टर I2 क्या हो जाएगा, I2 और ये सिंपल phi2 होगा, ये क्या हो जाएगा, I2 cos phi2 प्लस जे I2 sin phi2। सी नंबर क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। सो यूनिटी पावर फैक्टर कुछ नहीं, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, सो लाइक दैट। ओके मतलब इसको ऐसे लिख सकता है I2 प्लस J0। सबको क्लियर है कि नहीं बताओ, ये जो मैं लिखा हूं अभी ये सबको क्लियर है? कोई किसी को डाउट है इसमें, सबको क्लियर है यहां तक? आयुष राज फ्रॉम इसी ब्रांच, आयुष राज, यस सर, क्लियर है? यस सर, लीडिंग लैडिंग ये सब कॉन्सेप्ट जो करंट लिख रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं, सब समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। और वो आया है क्या, क्या नाम बोल रहा अभी सीआर बेसिक का, ऋषभ भारद्वाज, ऋषभ भारद्वाज क्लियर है? ठीक है तब नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, सबको क्लियर है तो बोलो, क्लियर है ना? वो सब जब पीछे वाला समझ में आ गया सबको, ठीक है आ गया, बहुत अच्छा बात है। तब अब हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन एक एक करके निकालने जा रहे हैं। सबसे पहला हम लोग निकाल लेंगे वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द व्हाट, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए निकालते हैं, ठीक है। हम लोग अभी टॉपिक जो लिख लेंगे, अभी हम लोगों ने वो जनरलाइज बता दिया था, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया वो जनरल बताया सबके लिए, देखो वोल्टेज है, ये है, सारा बता दिया। अब हम लोग आते हैं कैलकुलेशन पे, तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे ट्रांसफार्मर का। वोल्टेज रेगुलेशन किसके निकालते हैं, एट लैगिंग पावर फैक्टर, एट लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग पावर फैक्टर। ध्यान से समझोगे, बहुत बेसिक है, तुरंत समझ जाओगे, 2 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फेजर डायग्राम ये सब सबको आता होगा, मैं सिखा भी दूंगा फेजर डायग्राम ड्रॉ करना, यदि भूल भी गए हो तो, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है, सिखा देंगे तुरंत, ठीक है। सो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन एट द लैगिंग पावर फैक्टर। ओके सो
वोल्टेज, हम लोग वोल्टेज को हमेशा रिफरेंस लेते हैं। सो V2 इज इक्वल टू, रिफरेंस है V2 0, ठीक है, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं V2 प्लस J0, ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पर KVL लगाते हैं, यहाँ पर देखो है ना, इस चीज पे, इस सर्किट डायग्राम पे E2 निकालना रहेगा, E2, ठीक है। तो E2 निकालेंगे तो क्या V2 है, और यहाँ से करंट हम लोगों का सेकेंडरी करंट वाला I2 है, क्या है I2 है, तो I2 ZE2। देख लो सर्किट को, इस सर्किट डायग्राम को एक बार देख लो तुम लोग ध्यान से। ये V2, इसमें यदि E2 यहाँ से यदि हम लोग केवीएल लगाते हैं, E2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ठीक है ना। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं V2 तो हम लोग को दिख रहा है E2 चाहिए, E2 चाहिए, तो E2 क्या हो जाएगा V2 प्लस I2 ZE2, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है ना। और Z क्या है सबको पता है, V2 प्लस I2 Z क्या है RE2 प्लस JXE2। देख लो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बाबू, पहले बोल रहा है, ठीक है, बहुत बेसिक है, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोगों का, नाउ यू नो दैट दिस इज फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर। सो लैगिंग पावर फैक्टर ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, दैट इज -phi2। okay, now simply we have split to trigonometric form, that is the I2 cos phi2, and now minus, that is the j I2, now this one sin phi2. Now simple mathematical calculations here, simple mathematical calculations, okay. So you know that the voltage regulation formula, that is the E2 minus V2 divided by E2 into 100, okay. So our objective is to find out the E2 एंड V2 ऑलरेडी फाइंड है। E2 हम लोग को, E2 में हम लोग क्या करना है, I2 का वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो E2 इज इक्वल टू में I2 हम लोग यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे सिंपली, है ना। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर जो है E2 में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, V2 प्लस I2 के जगह हम इस चीज को पुट कर सकते हैं ना, I2 cos phi2 माइनस JI2 sin phi2, देखो ध्यान से, ओके, क्लियर है। और यहाँ पर क्या है RE2 m प्लस JXE2, बोलो बाबू। नाउ वी सिंपली इक्वेट द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। कर नहीं सकते हो क्या इसको, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर सकते हो ना सब कोई। सिंपली वी हैव टू इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो हियर सी हियर, so again now just separate the real part and imaginary part. So E2 is equal to V2 plus I2 RE2 RE2, देखो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, RE2 और cos phi2, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, पहले J RE2, तो J प्लस JXE2 प्लस JI2 XE2 cos phi2, ओके, माइनस J, सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, इसको इससे, इसको बाय बाय से जो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, RE2 sin phi2 और प्लस XE2 I2 और sin phi2। बोलो जी सबको क्लियर हो रहा है, ये मैं कुछ नहीं किया हूं, सिंपल यहाँ पर क्या है, ये V2 हम लोग को पता ही है, E2 पता ही है, I2 हम लोग लेगिंग के लिए -phi2, इस चीज को हम लोग यहाँ पर सिंपली पुट कर रहे हैं, और पुट करने के बाद हम लोग बस यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, कि सिंपल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। तो V2 प्लस I2 RE2 cos phi2 और प्लस क्या हो जाएगा I2 XE2 sin phi2 प्लस J को निकालो, I2 क्या है XE2 और ये cos phi2, और माइनस क्या हो जाएगा I2 RE2 और ये sin phi2, ठीक है। बोलो जी किसी को डाउट है यहाँ तक तो बोल सकते हो, किसी डाउट हो रहा है कुछ भी बोलो जल्दी से, anyone if any doubt then just tell me, ठीक है। यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे E2 का तो पता है, सबको पता है ना जी, सब पता है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे पास x इज इक्वल टू a प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो ना JB, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, रियल और का स्क्वायर निकालते हैं ना,
तो सेम टू सेम E2 निकालना रहेगा तो क्या करोगे, इसको पूरा का करोगे ना, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। V2 प्लस I2 RE2 cos phi2 प्लस I2 सर वो x माइनस होगा, कहाँ पर, लास्ट से थर्ड लाइन है ना E2 का, उसमें लास्ट में माइनस होगा, माइनस तो है यहाँ पर, उसके तो है। ऊपर वाला लाइन में। नहीं, जे और जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है ना, तो जे तो प्लस हो जाएगा ना, देखो ठीक से मल्टीप्लाई करो ठीक से, ये माइनस जे और जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस, देखो ध्यान से, हाँ ठीक है। साइन phi2 का होल स्क्वायर प्लस I2 x E2 cos phi2 माइनस I2 RE2 और साइन phi2 का होल स्क्वायर, ये हम लोग का E2 यहां तक निकल गया, ठीक है। सो ओके, ज्वाइन अगेन ऑल ऑफ यू, सबको तुरंत ज्वाइन करना है फिर से, यहाँ तक हम लोग का यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है, यहाँ तक का पूरा क्लियर है, ज्वाइन करो फिर से तुरंत।